Hello everyone, a very good evening to all of you and I hope you all are doing well. So class, as you know my name is Ashutosh and why we are here? We are here to tell you something which is very important for the goals which you want to achieve, for the result which you want to achieve. So class, before starting anything, before telling you anything, first of all I want to tell you about our program which is known as Vijay Bhav program. So in a Vijay Bhav program, which we launched here, you are able to achieve your goals with the help of our experienced faculty. So if you see here, you need to go through this link and you need to fill all the information of yourself. But definitely the question is arising in your mind, so why? So very first thing I want to tell you about the very important features of our Vijay Bhav program. So first of all, we are available for you 24/7. Means whenever you are having any doubts, whenever you are having any question, you can always come here and ask your doubts. Second thing, the experienced faculty and the content which we are providing to you. So the content which we are providing to you, that is a top quality content and from the experienced faculty. So what you need to do, you need to visit that site, you need to fill all the important information like your name, your grade and the course which you want to take. And after that, if you are going to apply this code, which is Ashutosh20, you will get 20% discount there. Okay, so I hope it is clear to you. Now, quickly moving ahead, what we are going to discuss today, we are going to discuss things to do while writing the exam. बिकॉज बच्चों देखो एग्जाम्स बहुत ही पास में है राइट और अगर हमने अभी से ये प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करी कि एग्जाम्स में हमें लिखने कैसा है एग्जाम्स में हमें आंसर्स को कैसे लिखना है वहां पे तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी एन इश्यू फॉर यू राइट तो सबसे पहले यहां पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों जब भी हम एग्जाम्स में कोई भी चीज लिख रहे हैं आपको टाइम एलोकेट करना है ईच सेक्शन को राइट जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए लूं वहां पे 4 सेक्शन है आपके एग्जाम्स में ए बी सी एंड डी तो आपको भी पता है ए सेक्शन जो है दैट इज ऑफ 1 मार्क वहां पे आपको कितना टाइम रखना है 15 मिनट्स 20 मिनट्स 30 मिनट्स बी सेक्शन में आपको कितना टाइम लगना है एंड आपको टाइम इस अकॉर्डिंग एलोकेट करना है कि लास्ट में आपके पास रिवीजन के लिए वहां पे टाइम हो करेक्ट तो लास्ट में जब आप पूरा एग्जाम पेपर कंप्लीट कर लो तो वहां पे उसको रिवाइज करना है वहां पे आपको वापस से रीचेक करना है कि मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं क्या मैंने जो कैलकुलेशंस करी हैं वो करेक्ट हैं कि नहीं तो उसके लिए भी टाइम हमको सेव करके चलना है नाउ द सेकेंड पॉइंट रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड स्ट्राइक ऑफ कंप्लीटेड क्वेश्चन ऑन द क्वेश्चन पेपर ठीक है तो क्या करना है सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में कुछ और इंफॉर्मेशन गिवन है और जब हम नोट डाउन कर रहे होते हैं डेटा हम कुछ और इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लेते हैं एंड वी विल गेट द रॉन्ग आंसर राइट तो 2 बार पढ़ना है क्वेश्चन को जो डेटा वहां पे गिवन है करेक्ट डेटा हमको नोट डाउन करना है एंड द क्वेश्चन जो आप करते जा रहे हो उस पर टिक मार्क कर लो कि हाँ दैट इज डन राइट सो इन द रिवीजन व्हेन यू आर रिकॉलिंग एवरीथिंग व्हेन यू आर चेकिंग कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस हो गए तो वहां पे आपको इसके लिए हेल्प मिल जाएगी मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट the next point is how to present the paper means how to write your answers so the very important thing class that is margins how to do these margins so draw the margins on the left side of the answer sheet for the question number and on the right side for the rough work I will show it to you also like what you need to do if this is a answer sheet so on both sides you need to draw the margins here you need to write question or maybe you can write answer 1 answer 2 and for this side this is a rough work whatever calculation you are going to do देखिए मैथ्स में बहुत सारा कैलकुलेशन होता है फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं वहां पे क्वेश्चंस होते हैं तो जहां कहीं भी न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस के लिए वहां पे आपको रफ वर्क के लिए स्पेस जरूर से छोड़ना है ठीक है Moving ahead with the next point that is also very important write your paper in blue or black ink only सिर्फ ब्लू और ब्लैक इंक का वहां पे यूज करना है वहां पे हमको ऐसा कोई कलर नहीं यूज करना है जैसे ग्रीन रेड ऐसा कोई भी अदर कलर पेन का यूज हमको नहीं करना है किसी चीज को हाईलाइट करना है आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो बट सिंपली यूज ब्लू एंड ब्लैक पेन देयर फॉर राइटिंग योर आंसर्स थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग राइट इन नीट एंड good handwriting if you make a mistake strike it out neatly with one single line right now if I tell you if I mention some word read और मुझे यहां पे ये वर्ड नहीं लिखना था तो what we need to do we just need to cancel it out like that
We not need to do it like this and this and that. No, nothing. If you want to cancel out any word, just cancel it with a single line. Done. Okay? तो बहुत ही साफ वहां पे हमें लिखना है, बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में हमको वहां पे सारी चीजें मेंशन करनी है. एंड इफ यू मेक अ मिस्टेक, आपको स्ट्राइक आउट करना है नीटली विद वन सिंगल लाइन. ओके? डू नॉट डू एनी अदर थिंग. डू नॉट यूज एनी अदर थिंग टू क्लियर इट. Try to attempt the question of a section in a sequence. जो भी sequence है, A part, first question, second question, third question, B part, first, second, third, fourth. So always do it in a sequence. Sometimes what is happening, we are not doing it in a sequence, and because of that we are losing the marks. Because when examiner is checking, most of the time they are having the question paper and they are checking the questions in a sequence. So if it is easy for the checker who is checking the copies, so definitely it is going to be easy for us. It is going to be helpful for us to get the good marks. So that is very important. Try to attempt the question of a section in a sequence. In case you are not sure about a question, leave some lines and come back it to later. Means we all know that now. If there it is a question जिसका आंसर मुझे नहीं पता, if it is a 2 marks question, it will hardly take 5 to 6 lines. If it is a 3 marks question, you can leave 8 to 10 लाइन्स. सो वहां पे आप स्पेस छोड़ सकते हो, एंड जब भी आपको रिकॉल करो, जब भी आप वापस से एग्जाम को देख रहे हो, वापस से उस क्वेश्चन पे आ रहे हो, यू कैन राइट द आंसर एट दैट टाइम ओनली. सो ऑलवेज ट्राई टू डू द क्वेश्चंस इन अ सीक्वेंस. मूविंग अहेड, डू नॉट यूज एसएमएस लैंग्वेज एंड द शॉर्ट फॉर्म्स. राइट नाउ क्या होता है, हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सारी चीजों को. तो क्या करते हैं, कभी कभी बिटवीन की जगह हम बीडब्ल्यू लिख देते हैं, राइट? या फिर और भी किसी शॉर्ट फॉर्म का यूज कर देते हैं. तो वहां पे कोई भी शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करना है, किसी भी एसएमएस लैंग्वेज का यूज नहीं करना है, और हमको वहां पे एकेडमिक राइटिंग स्टाइल में और अटेंशन करते हुए सारी स्पेलिंग्स को, सारी चीजों को करेक्टली मेंशन करना है. दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है? तो वहां पे कोई भी शॉर्ट फॉर्म में हमको चीजें मेंशन नहीं करनी है. डू नॉट एलिब्रेट टू मच व्हाइल राइटिंग द आंसर्स. अब एक एग्जांपल लेते हैं. मैंने आपसे फोर्स के बारे में पूछा, एंड दैट इज जस्ट अ 1 मार्क क्वेश्चन. तो सिर्फ आप डेफिनेशन मेंशन करोगे एंड यूनिट, दैट्स डन. ओके, अब इसमें मुझे ये नहीं करना है कि मैंने टाइप्स भी मेंशन कर दिए, मैंने उन टाइप्स को भी डिस्क्राइब कर दिया. दैट इज नॉट रिक्वायर ओनली. ठीक है? तो मार्क्स जितना एलोकेट है उस क्वेश्चन को, उतना ही हमें डिस्क्रिप्शन देना है, उतना ही उस चीज के बारे में हमें डिस्क्राइब करना है. दैट विल सेव अवर टाइम. स्टिक द वर्ड लिमिट इन अ मार्किंग स्कीम. अगर वहां पे कोई वर्ड लिमिट दी है तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें करनी है. फॉर वेरी शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, underline the answer or the main keyword. So if I'm saying that same question I'm taking as example. Okay, let's take a different question. What is work done? So when you are writing the work done, you are going to write it, if we are applying a force on any object and there it is a displacement, we can say that the work done is there. So you need to underline the displacement and force. राइट? सो कीवर्ड जो है उनको अंडरलाइन करना है. अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है जहां डायरेक्टली आपको 1 वर्ड में आंसर करना है, उसको आपको अंडरलाइन करना है. राइट? वेरी सिंपल, इजी. फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन इन अ पॉइंट्स विद इन द कॉलम्स, डू नॉट राइट इट इन अ पैराग्राफ. तो अगर आप कभी भी कोई लॉन्ग आंसर लिख रहे हो तो कोशिश करना है कि हमें पॉइंट्स में मेंशन करना है. जब भी आप पॉइंट्स में मेंशन करते हो, बहुत ही क्लियरली जो आपका एग्जाम चेक कर रहा है, जो आपकी कॉपीज चेक कर रहा है, उनको विजिबल होता है, एंड यू विल इजीली गेट द गुड मार्क्स फॉर दैट. ओके? तो क्वेश्चंस को हमें कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा हम पॉइंट्स में मेंशन करें इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग इट इन पैराग्राफ्स. इन साइंस, ड्रॉ द नीट एंड लेवल डायग्राम्स. तो साइंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है लेवल डायग्राम्स की. डायग्राम्स हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करिए, पेन से ड्रॉ नहीं करने हैं. वहां पे लेबलिंग जो हम कर रहे हैं, अगर हम किसी चीज की लेबलिंग कर रहे हैं, वहां पे एरो शो कर रहे हैं, तो उसको आप रूलर से ड्रॉ करिए, फ्री हैंड से ड्रॉ मत करिए. ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है जो याद रखने. गिव अ प्रॉपर टाइटल टू द ईच डायग्राम. जो भी आप डायग्राम बना रहे हो उसका जो भी टाइटल है वो भी आपको मेंशन करना है. Talking about social science, for map based questions, write the question number on the top left corner of the map and attach the map in a middle, not at the end of the answer sheet. ठीक है? एंड में नहीं मेंशन करना है, मिडिल में ही आपको आंसर शीट में मैप को पेस्ट करना है वहां पे. राइट? तो ये छोटी छोटी सी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. इन मैथमेटिक्स, राइट डाउन ऑल द गिवन इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर एज इट अपीयर्स, गिवन टू फाइंड फॉर्मूला, प्रूफ एंड आंसर. ठीक है? तो जैसे कोई क्वेश्चन है, तो किसी क्वेश्चन में हमको क्या चीजें मेंशन करनी है? सबसे पहले हमको मेंशन करना है व्हाट इज गिवन, व्हाट वी नीड टू फाइंड, व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट प्रूफ वी आर डूइंग हियर, एंड द फाइनल आंसर विद द यूनिट. ठीक है? फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, जहां पे भी हम आंसर मेंशन कर रहे हैं, हमेशा हमको यूनिट्स के साथ मेंशन करना है वहां पे आंसर. राइट?
Quickly moving ahead, English, write the composition and answers in the paragraph as per the word limit. Do not write in a points. वहां पे पैराग्राफ में मेंशन करना है, पॉइंट्स में नहीं लिखना है. So again we are here. तो आई होप मैंने बहुत जल्दी से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें समझाई हैं जो आपके आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है. राइट. तो बहुत बार हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारी चीजों पे फोकस करते हैं, हम स्टडी पे फोकस करते रहते हैं, कंटेंट पे फोकस करते रहते हैं, क्वेश्चंस पे फोकस करते रहते हैं, बट इन छोटी छोटी चीजों को हम भूल जाते हैं या फिर हम थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं. बट प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आंसर्स का प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं, आप सारे आंसर्स को लिख कैसे रहे हैं. राइट. सो आई होप दिस इज गिविंग यू अ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. ये आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल होगा. अगेन फॉर द स्टूडेंट्स जो वीडियो के एंड में है, अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ यू वांट टू जॉइन अवर इन्फिनिटी लर्न फैमिली, यू नीड टू विजिट दैट साइट, यू नीड टू फिल ऑल द इंफॉर्मेशन, देन व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस Ashutosh 20 code, you will get 20% discount there. Okay, so class, that's all for the day. And again we are going to come again, मैं यहाँ पे आऊंगा आपके पास कुछ strategy लेके. So I hope this is very helpful for you. We are going to meet again. Till then, take care of yourself. Bye bye.